Once again, I'm back with our everyday segment Market Talks with Pinnacle, presented by your friend Abhijit. So, I hope all of you are already following our Telegram channel. If you are not following our Telegram channel, then you must follow, where you will get everyday market updates, the market commentary, and many stock related updates. And now we'll start with our everyday discussion. So, if you can see on your screen again, if we always tend to start from the exact place where we left yesterday, and yesterday we had a very good discussion about VIX, or in short, we can say about the India VIX, which you might be mostly familiar about the volatility index. So I hope you are now quite comfortable and clear with what India VIX is. It is not actually something to be feared of. It is just a measure of the volatility. So now coming back to our charts, as we had already discussed yesterday, market went to 18,530, so sudden, and that was mostly in the last half an hour rally. So we had already concluded that, and we had also written in the market commentary, if you remember, that today is not about a follow up rally, rather it will just be about defending the levels and closing somewhere near the highs. And that is what happened. We closed near the weekly highs of Nifty. You can see it for the entire day. If you can see, we opened at around 18,530, and then we corrected a bit to 18,450 levels, and which is like the entire day we had traded in uh, 80 point band. So now for the coming week, if we actually want to see for what could happen for the coming week, so we would be more interested in the weekly charts. As per the weekly chart, it looks pretty strong. We have closed near the highs, so we must not be surprised if we see some more follow up rally in coming weeks. So maybe 19,000 might just be a reality sooner than we might even think. So we should be ready for that, right? And we have discussed it multiple times. So nothing secret in that, or nothing to be surprised of. For Nifty going forward, the most important stop loss on the downside, you can note down the levels, 18,420 levels. It becomes most important. And if we have to create a long positions, 18,540. When you create fresh long positions, now understand one more important thing. It might happen that on Monday we open gap up. So if that actually happens, don't chase the gap up. Let market give you a small dip. A dip might come somewhere 40-50 points. Use the dip to build long positions. Don't try to chase the gap up. So this is what you have to do. And suppose if there is a gap down, then gap down maybe somewhere around today's 2030. I don't think that we can have a big gap down, but still if we have a gap down, maybe even if somewhere around 18,440, this is just in case, 18,440 430, it we might just start to see some real buying from that point. But again, don't immediately buy. First see proof of buying, and then keep the first hour low as stop loss, and then you can enter into the trade. So the idea is very very clear. Don't be short, never go against the main trend, and just be long. Now coming to Bank Nifty we have already discussed. And if you can see the weekly chart of Bank Nifty, we have started a journey from the level of 41,800, which we have discussed, and we have already covered 1,000 points from that. So if you remember, we had discussed that we could have 8 to 10% or maybe even 15%. So which could be like, we can see another 3 4 5,000 मूव्स फ्रॉम देयर, 4-5 हज़ार पॉइंट की एक अच्छी खासी रैली हमें वहाँ से अब अभी और देखने को मिल सकती है. तो ये सब पॉइंट्स आपको बस ध्यान में रखने हैं. निफ्टी के लिए भी सेम है. 18,440 बोलिए, वो ज़्यादा बेटर है. वहाँ तक अगर आपको डिप मिलता है, वो एक अच्छा लॉन्ग करने की अपॉर्चुनिटी होगी.
कुछ स्टॉक सेटअप्स की भी हम लोग बात कर लेते हैं। एक सेटअप जो मैं आज देख रहा था और मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, जो था अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स, अगर आपको याद होगा, हमने काफ़ी दिन पहले, नॉट too many days back, but just maybe like another 7 to 8 days back, most probably in the video of 22nd नवंबर। तो आप 22nd नवंबर के वीडियो में आप देख सकते हैं। तो अपोलो टायर्स एक बहुत ही बढ़िया मोमेंटम पकड़ता हुआ हमें दिख रहा है, और जो इसमें रियल मूव आपको देखने को मिल सकता है वो 300 रुपये के लेवल के ऊपर आपको एक बढ़िया मूव देखने को मिल सकता है। तो इसको अपने रेडार में ज़रूर रखिएगा, और 300 रुपये के ऊपर आपको एक अच्छा खासा 10-15% का मूव मिल सकता है, जिसको आप कैश फ्यूचर्स जिसमें भी चाहें अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से प्ले कर सकते हैं। अगेन मैं सेम बात बोलूँगा, दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन, दिस इज़ जस्ट माई ऑब्जर्वेशन, एंड what I see on the charts, I am just telling that this is not a buying recommendation. Please do your due diligence before that. और एक बहुत ही बढ़िया सेटअप मुझे देखने को मिला, जो था IGL, जिसको आप लोग इंद्रप्रस्थ गैस के नाम से जानते हैं, जो करेंटली 430 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप देख सकते हैं तो ये 430 के लेवल पे अच्छा ट्रेड कर रहा है, और इसको आप अपने रेडार में रख सकते हैं आने वाले वीक के लिए। इसमें आपको एक अच्छा खासा मूव हो सकता है देखने को मिले। 440 के लेवल्स के ऊपर में आपको बढ़िया मूव देखने को मिल सकता है, 10-15% भी मूव। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो अगर मूव करते हैं तो बहुत ही स्पीड में मूव करते हैं। तो इसीलिए अगर इसमें आपको एंट्री लेनी हो तो ब्रेकआउट का वेट नहीं करना चाहिए, इसमें हमेशा कंसोलिडेशन के टाइम में ही एंट्री करनी चाहिए। तो जब भी ये साइडवेज थोड़ा बहुत चल रहा हो, आराम से 410-11 का स्टॉप लॉस के साथ आप इसको रख सकते हैं। अगेन नो, दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन। और कभी कभी होता क्या है फ्रेंड्स, कि कुछ एक स्टॉक्स जो होते हैं ना, वो एकदम साथ में मूव करते हैं। जैसे आप देखिए, बजाज फिनेंस हुआ और बजाज फिनसर्व, दे whenever they'll move together. Similarly, when you have the HDFC twins, now there is already lot of talk going about the merger of the HDFC twins. So जब भी HDFC मूव करेगा, सेम टाइम सेम स्पीड पे HDFC बैंक भी आपको आज के डेट में मूव करता हुआ दिखेगा। तो हर एक स्टॉक का एक कोई ना कोई काउंटर पार्ट खड़ा हो जाता है। अगर आपको कभी रियलिटी सेक्टर मूव करता दिखता है तो आप देखेंगे उसमें के सारे स्टॉक्स, जो भी लीडिंग स्टॉक्स होते हैं, वो अच्छा मूव करते हैं। तो उसी तरह से IGL अगर मूव कर रहा है तो आपको, जब भी आप IGL देख रहे हो, तो MGL आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो आप देखेंगे इसमें भी आपको एकदम सिमिलर सा पैटर्न देखने को मिला है, बस इसका प्राइस उससे ज़्यादा है ये, बट इसमें 900 के ऊपर आपको एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो इसको भी आप अपने ट्रैक पे रख सकते हैं। 900 के ऊपर ये आपको 1000 रुपये का भी लेवल दिखा सकता है। इसमें आपका स्टॉप लॉस अराउंड 850 के आसपास आप रख सकते हो। 850 इज़ अ गुड लेवल फॉर अ स्टॉप लॉस। बट हाँ, इसमें एक बढ़िया मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो ये दो, इनफैक्ट दो नहीं, ये 3 स्टॉक आप लोग अपने रेडार में रख सकते हैं, जो आपको आने वाले कुछ दिनों में एक बढ़िया मूव देखने को मिल सकते हैं। आने वाले वीक में आपको कभी ना कभी आपको एक अच्छा ट्रेड दे सकते हैं। तो और अगर आप सही से देखें तो एक हफ्ते में 3 स्टॉक बहुत होते हैं ट्रेड करने के लिए। प्रॉब्लम यही है कि हम लोग बहुत सारे स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहते हैं, बट अगर आप रियल में कभी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि आप बहुत सारे स्टॉक्स में ट्रेडिंग करके सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। आप किसी भी बड़े ट्रेडर की बायोग्राफी उठा लीजिए, इंटरव्यू पढ़िए, वो एक टाइम पे एक स्टॉक, मैक्सिमम 2 स्टॉक में ट्रेड करते हैं। तो अगर आपको सही में पैसे बनाने हैं तो आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ पे जंप करना छोड़ना पड़ेगा। सो दिस इज़ द थिंग। अब इट इज़ लाइक ट्रेडिंग। मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स, मास्टर क्लास के स्टूडेंट को मैं ये एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि ट्रेडिंग
ऐसी करनी चाहिए जैसे शेर शिकार करता है। एंड अगर आपको याद होगा तो शेर कैसे शिकार करता है, वो रोज़ शिकार करता नहीं है, वो हफ्ते में करता है, और हफ्ते में एक बार निकलता है, शिकार को पकड़ता है बहुत केयरफुली। जब तक शिकार उस तक नहीं आ जाए तब तक वो वेट करता है बहुत ही पेशेंस से, और जब अटैक करता है तो उसे पूरा खाता है। तो इस चीज़ को आप लोग हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप लोग ट्रेड कर रहे हैं तो शेर की तरह शिकार करिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हर छोटी अपॉर्चुनिटी पे 2, 5, 10% के लिए इधर से उधर मूव कर रहे हैं, किसी भी सेटअप पे जंप मार रहे हैं, किसी ने कुछ सजेस्ट कर दिया वो ले लिया, उसने वो सजेस्ट कर दिया वो ले लिया। आपको इन सब चीज़ों से बचना पड़ेगा, इन सब चीज़ों से बिल्कुल ही बच के चलना पड़ेगा। आप जितना कम ट्रेड करेंगे, आपको ये समझना पड़ेगा, हम लोग अच्छे ट्रेड्स के पीछे भागते हैं, लेकिन अगर आपको समझना पड़ेगा द लेस ट्रेड्स यू टेक द मोर बैड ट्रेड्स यू रिमूव। आप एक कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे अगर आप 100 ट्रेड लेते हो तो एक सिंपल इक्वेशन है कि आप उसमें से 40 ट्रेड तो गलत होंगे ही होंगे। तो वैसे केस में अगर आप अपना नंबर ऑफ ट्रेड्स घटाते चले जाए, सपोज करिए आपने डिसाइड किया कि मैं अब से 100 नहीं सिर्फ 50 ट्रेड लूँगा आने वाले एक साल में, तो आप उतने ही केयरफुल हो जाएंगे, आप उतने ही अच्छे ट्रेड्स उठा करके ट्रेड करेंगे। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए, और बहुत ज़्यादा ट्रेड्स के पीछे मत भागिए। सेलेक्ट करिए, 1, 2, 3 ट्रेड्स सेलेक्ट करिए और अकॉर्डिंगली ट्रेड करिए, तभी जा कर के पैसे बनेंगे। और खास करके पोजिशनल में ट्रेड करिए। पोजिशनल में आपको अगर अच्छे सेटअप्स मिलते हैं तो आपको एक एक स्टॉक 8, 10, 15% का मूव 10 से 15 दिन के अंदर में दे सकता है। तो एज अ ट्रेडर आपका जॉब होना चाहिए ऐसे स्टॉक को आइडेंटिफाई करना, ना कि हर रोज़ इंट्राडे ट्रेडिंग के पीछे भागते रहना। इंट्राडे ट्रेडिंग करिए, अच्छी बात है, लेकिन इस चीज़ को समझना होगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग जो होती है वो प्रोफेशनल्स के लिए होती है, वो सबके लिए नहीं होती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। इस तरह के अच्छे वाले सेटअप्स जो आपको मिलते हैं, यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई द राइट सेटअप्स। मे बी लाइक if you plan that you will not take more than 4 or 5 trades in a week, तो आप ऑटोमेटिकली सारे बैड ट्रेड्स को ख़त्म कर देंगे। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नॉलेज है जो आपको समय के साथ आप खुद सीखेंगे। आज आपको मैं सिखा रहा हूँ, शायद आप सीख जाएं, कुछ लोग सीखेंगे, कुछ नहीं सीखेंगे, जो सीखेंगे उनका भला हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करने से बहुत ज़्यादा पैसे नहीं बनते हैं, इसको हमेशा याद रखिएगा। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ओके, सो नाउ वी कम ऑल्सो डिस्कस वन ऑफ आवर स्टॉक्स HPL इलेक्ट्रिक, जो कि हमारा बम्पर दिवाली पिक था। तो आप देख सकते हैं आज इसने एक बहुत ही बढ़िया मूव दिया। तो अब बहुत लोग आप लोग सोच रहे थे कि इसमें कब एंट्री करनी है। आज इसमें एंट्री बन रही थी 96 99 के लेवल पे। अब इसमें दोबारा से आप लोग चाहें, अगर आपने एंट्री नहीं ली है तो अब इसमें एंट्री ले सकते हैं। नोट करके रखिए, ये लॉन्ग टर्म के लिए है, दिस इज़ नॉट अ शॉर्ट टर्म थिंग, यू नीड टू होल्ड इट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, लेकिन अब अगर एंट्री करते हैं तो 90-91 रुपीज़ के आसपास का इसमें एक स्टॉप लॉस लगा करके आप एंटर कर सकते हैं। तो ये हुआ आज का कैश स्टॉक। तो फ्रेंड्स, आज एक मैं बहुत ज़रूरी बात बोलने जा रहा हूँ। आज आपको, अगर आप बहुत ध्यान से मेरे स्क्रीन को देख रहे होंगे, तो मैंने एक और टैब खोल रखा है जो कि है CNX मिड कैप। तो ये मिड कैप इंडेक्स का चार्ट है। फ्रेंड्स, मैंने बहुत जगह बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं that this is not a broad based rally, whatever is happening, Nifty is running, but this is not a broad based rally, the broader market is not participating. Friends, you need to understand, अगर निफ्टी भाग रहा है तो सबसे पहली बात है कि जो निफ्टी 50 के जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं वो तो भाग ही रहे हैं, राइट। बिना उनके तो निफ्टी नहीं भाग सकती। तो ऐसी बातों को, ऐसे लॉजिक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपको
और सब चीज़ के बाद हर स्टॉक, हर टाइप के स्टॉक का अपना एक टाइम होता है, वो अपना एक साइकिल होता है। जैसे अप मूव के बाद डाउन मूव आता है, ये पार्ट ऑफ साइकिल है। जैसे डाउन मूव के बाद अप मूव आएगा, ये पार्ट ऑफ साइकिल है। उसी तरह से मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, जो भी अलग अलग छोटे छोटे बड़ी कंपनीज हैं, छोटी कंपनीज हैं, जो इन इन सब का अपना अपना साइकिल होता है। सब अपने अपने टाइम के साथ आते हैं। तो अगर आप देखें तो इसीलिए इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। लोग आपको डराएंगे यहाँ पे। अभी बात है, डरने की बात नहीं है। अभी अगर मुझसे पूछें तो जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, अभी समय बस स्टार्ट हुआ है और अभी पैसा बनाने का टाइम आने वाला है। तो अगर आप ध्यान से मिड कैप इंडेक्स के चार्ट को अपने सामने में देखें, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आइडेंटिफाई चार्ट पैटर्न्स, बट अगर आप इसको देखें तो इसमें एक बहुत ही बढ़िया सा कंसोलिडेशन पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। तो नॉर्मली इस तरह के कंसोलिडेशन पैटर्न के बाद एक बहुत बढ़िया सा मूव आपको अपसाइड में देखने को मिल सकता है। तो अभी जस्ट वेट करिए, 1 2 3 4 महीने, अगले 3 4 महीने मिड कैप्स में जम के पैसे बनेंगे। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू पिक द राइट स्टॉक, बी इन द राइट स्टॉक एंड इन्वेस्ट द राइट काइंड ऑफ मनी। अभी डरने का समय नहीं। अभी आपको लोग बहुत डराएंगे। हाँ, इसमें आपको फ्रेश लाइफ टाइम हाई भी जल्दी ही देखने को मिल सकता है। और सिर्फ मिड कैप ही नहीं, अगर आप निफ्टी स्मॉल कैप का भी खोल करके देखें चार्ट, तो आपको कुछ ऐसा ही सिमिलर सा चीज़ देखने को मिल जाएगा, जो कि एक काफ़ी अच्छे टाइम से ये एक कंसोलिडेशन चल रहा था यहाँ पे। और अब हम लोग इस कंसोलिडेशन के ऊपर निकलने को तैयार हैं। बहुत से लोग, आपका कंप्लेन बिल्कुल वाजिब है कि इसमें रैली नहीं आई है, लेकिन जो अब मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि अब स्मॉल कैप और मिड कैप का टाइम आ गया। तो अभी अगर आप हमारे चैनल को फॉलो अभी भी नहीं कर रहे हैं तो और आपको अभी फॉलो करना चाहिए। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी बोलिए फॉलो करने, क्योंकि अब हम लोग कंप्लीटली हो सकता है कि एफएनओ की जगह कैश स्टॉक में मूव कर जाएं। और जो लोग मुझे काफ़ी पहले से जानते हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं एफएनओ से ज़्यादा कैश में बिलीव करता हूँ। आई हैव मेड बिग एंड डिसेंट मनी इन कैश, एंड मैं वही लोगों से सजेस्ट करता हूँ। मैं बार बार बोलता हूँ एक बार, दैट यू हैव टू बिलीव दैट कैश इज़ किंग। आपको बस सही तरीके से सही स्टॉक में सही टाइम पे इन्वेस्ट करना है, इसमें बहुत पैसे बनते हैं। तो अभी स्मॉल कैप और मिड कैप का टाइम आने वाला है। बहुत से ऐसे स्टॉक्स आएंगे जो आपको एक एक महीने में 20-20, 30-30, 40-40% देंगे। आपको ऐसे स्टॉक्स को खोजना है और उनमें पैसे इन्वेस्ट करने हैं। बहुत एफएनओ में रिस्क लेकर के, बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर के आप शायद उतने पैसे नहीं बना पाएँ जितना इसमें बनेगा। ये फेज़ बहुत लंबे टाइम बाद एक बार आता है जब, और ऐसा होता है कि वो एक जो 3 4 5 महीने का जो पीरियड होता है, उस समय बहुत आराम से बहुत इजीली पैसे बनते हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स, मैंने मैसेज में भी ऑलरेडी आज लिख दिया था दैट आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। दिस इज़ द रीज़न आपको समझना पड़ेगा। मिड कैप स्मॉल कैप का टाइम आने वाला है। अगर आप लोगों को लगता है कि आपका पोर्टफोलियो पीछे अटका हुआ है, तो अभी टाइम है। हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में कुछ बुरे स्टॉक्स पड़े होंगे। आपको उन बुरे स्टॉक से निकल के अच्छे वाले स्टॉक्स में शिफ्ट करना होगा। आपको वेट करना होगा, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो वेट करिए, हमारे चैनल से कनेक्टेड रहिए। मैं इस वीकेंड टाइम निकाल करके कुछ अच्छे वाले स्टॉक्स ढूंढ करके आपको डेफिनेटली बताऊंगा। So guys, this is it for today. Stay tuned, follow our Telegram channel, also share with your family and friends, and be ready for the time which is coming forward. Thank you. Have a nice weekend ahead. Bye bye.